औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप लोग फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं आपके मैथ के बुक का एंड आई एम चैप्टर नंबर 3। प्लीज ओपन योर बुक्स विद यू जो आपके पास है। ओपन योर बुक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 3 एंड आई एम ऑन पेज नंबर 59। Page number 6, page number 59, chapter number 3, page number 59. And the topic is approximation. I'm just going to share on my screen to you and we'll start study about the topic, that is approximation. I hope आप लोगों ने बेटा अपने चैप्टर नंबर 3 पेज 59 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, निकाल लिया होगा अपने बुक्स का। तो बेटा first topic that we will study now, that is about the approximation a number up to nearest 10 and up to nearest 100. First in the questions, here is a table which shows the different values and their names. In the earlier classes, you have studied the main point, which is the decimal point. Now, on the left side and on the right side, all the digits have been named properly. On the left side of the decimal, first number is called 1, next one is called 10, and next one is called 100. And next on the left side is 1,000, then 10,000, then 100,000, and then million. Then on the right side of the decimal, the first digit is called 10th, then 100th, 1,000th, and then 10,000. मेरा ख्याल है, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने जो पॉइंट है ये ऑलरेडी पहले आपने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो ये टेबल बेटा आप लोगों ने इस तरह से पूरे स्टडी करना है, इसको याद करना है, तब आपके जो क्वेश्चन है वो बेहतर कर सकेंगे। The basic value is approximation. Approximation means that we need to find a very close digit to the actual. Well, definitely it is, इस तरह से भी आपको मैं बता रहा हूँ, अपने पढ़ा इसकी जो मेन डेफिनेशन है बेटा कि हम लोग कोई करीब का डिजिट ढूंढते हैं जिसको इस्तेमाल करना हमारे लिए इजी हो जाए। इस तरह से देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल से दिए, एग्जाम्पल 4.1 है। अगर हम इसको थोड़ा सा जरा करीब जानने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि 4.1, चलो 4। और देखिए नेक्स्ट इज 9.87, that is about going to nearest to the 10. Then 32.5, we call it, or we say 33. 195 is down to nearest 200 value, and 798 is very near to 800. Why we need approximation? The main question is that we need approximation to get a quick answer. Sometimes we have to just estimate the value, not actual, but we have to find the actual value. We just need a rough approximation that what might be the value. As in the picture on the right side shows, a man is thinking about the different beans in a bottle. Logically, you think that might be 10, might be 100, might be 1,000. So it's approximate guess that it might be 100. So that we can further calculate and estimate a rough value. Rough value actual के करीब तो नहीं होती, actual के करीब जरूर होती है, लेकिन बहरहाल हम उसको 100% actual नहीं कह सकते। और ये approximation की ही इसीलिए होती है बेटा कि हम लोग एक छोटा सा ये रफ estimate कर लें, ताकि हम लोग बस अंदाज़ा लगा लें कि हमें आगे नेक्स्ट स्टेप के साथ या हमारा
जो रिजल्ट है अप्रोक्सीमेट कितना का आ सकता है। इसे देखिए इसकी डेफिनेशन स्टार्ट में फर्स्ट पॉइंट, अप्रोक्सीमेशन मीन्स अ वैल्यू और क्वांटिटी दैट इज नियरली, ये करीब होती है लेकिन एक्चुअल नहीं होती, बट नॉट एग्जैक्टली एक्चुअल। तो मेन जो टॉपिक आपकी बुक का आप उसकी तरफ जाइए, तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल्स दिए। अच्छा यहाँ देखिएगा, आपने जो रूल स्टडी करना है, रूल क्या है बेटा कि आप लोगों ने जब भी अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाना है, यू फर्स्ट हैव टू फाइंड द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट कहाँ है, और आपने डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जाना है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड रूल वन देखिए कहते हैं, लुक एट द डिजिट एट यूनिट प्लेस फोर डेसिमल। आपके माइक्स ऑन ऑफ करें प्लीज, आपके कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स, सॉरी, टर्न ऑफ योर माइक। Now, first point is, look at the digit at unit place before decimal point to the number ending with 0, 1, 2, 3 or 4. So we will get down. That means हम लोग next step पे नहीं जाएंगे, बल्कि एक step पीछे चले जाएंगे। और अगर आपका decimal point जो है उससे जो unit place में digit है, then look at the digit at unit place before decimal point. If the number ending with 5, 6, 7, 8 or 9, we will get rounded up. So अगर 0 से लेकर 4 तक डिजिट्स हैं बेटा, तो आप लोग उसको राउंड डाउन करेंगे, और अगर 5 और उससे और है तो फिर आप इसको राउंड अप करेंगे। ये मेन रूल है जो अप्रोक्सीमेशन में फॉलो होगा। अब लेट्स, मेरे पास एक वैल्यू है बेटा कि मैंने कुछ डिजिट्स आपको यहाँ एग्जांपल्स मैंने दिया, उसको मैंने नियरेस्ट 10 पे लेकर जाना है। लेट्स सपोज राउंड ऑफ 245 टू द नियरेस्ट 10। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें बेटा, यू डोंट हैव द डेसिमल पॉइंट, एंड व्हेनेवर यू डोंट हैव द डेसिमल पॉइंट, द डेसिमल इज कंसीडर्ड एट द एंड। दैट मींस डेसिमल विल बी प्रेजेंट आफ्टर 5. So the digit at unit place is 5, and I told you that you have to look at the digit at unit place. So it will fall in this category. Category number 2. This the digit at the unit place is if 5, 6, 7, 8 or 9. We will get rounded up. So अगेन देखिएगा, मैंने पॉइंट नीचे उसको क्लैरिफाई किया है कि एज द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 5 व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, दैट मींस द डिजिट विल राउंड इट अप। अब हमने करना ये है बेटा कि उसके जो बिल्कुल उससे बिल्कुल जो पिछला डिजिट है, द डिजिट एट 10th प्लेस, add 1 in the digit at 10th place. अब 5 से पिछला जो डिजिट है, जो डिजिट एट 10th place है 4 है। So okay, because we have to round it, we have to round it up. So we will add 1 in this digit which is on 10th place, and 4 will become 5. So we have now approximated the digit at the unit place, and now to increase a digit 1 in the 10th place, and again what we will do, we place 0 on the digit at 1 place, कि वहाँ हम लोग इसको 0 प्लेस कर देंगे, क्योंकि हमने जो डिजिट यूनिट प्लेस पे है उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया है, अप्रोक्सीमेट कर दिया। तो हमारा आंसर बनेगा बेटा 250, जो कि अप्रोक्सीमेशन होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 245 की। दोबारा से देखें, हमने बेटा इस डिजिट को नियरेस्ट 10 पे लेके जाना है, and for that we should have look at the very first digit, which is for 5. If you study the 1 point as a digit at your unit place, आप लोगों को भी मैंने टेबल बताया था यूनिट 10, 100,000, 10,000 वाला, तो ये वही है।
as a digit at unit place is 5, which is greater than or equal to 5, so that digit will be rounded up. और अगर ये 5 से छोटा होता तो फिर ये राउंडेड डाउन होता। अब पुनः एक असल एडिशन जो होगा बेटा वो होगा डिजिट एट होगा इनमें डिजिट एट द 10th प्लेस में, और जो 10th प्लेस है वो 4 है, तो चूंकि हमें राउंडेड जाना है आपने इस 4 में 1 ऐड कर देना है, सो 4 becomes 5, और उसके बाद आपने ये क्या करना है बेटा यूनिट प्लेस पे आप लोगों ने 0 प्लेस करना। सो वी विल गेट आवर आंसर व्हिच इज इक्वल टू 250। बेटा आपको समझ आ गई है? कौन करके मुझे बताएं। यस यस अच्छा एक और, अच्छा बेटा एक और एग्जांपल देखें। ये डिजिट है बेटा राउंड ऑफ 273.1 टू द नियरेस्ट 10। मैंने आपको अभी बताया था कि आप लोगों ने मेरा डिजिट देखना है बिफोर डेसिमल। क्या देखना है? डिजिट बिफोर डेसिमल। अब देखो डिजिट बिफोर डेसिमल क्या नजर आ रहा है आपको? 3 नजर आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू द रूल अगर ये डिजिट बेटा 4 से लेस है, 4 5 4 से लेस है, 4 3 2 1 है, तो बेटा हम इसको क्या करेंगे? राउंड डाउन करेंगे। अगर 5 से ऑनवर्ड होता तो राउंड अप होगा, अगर 5 से छोटा डिजिट होगा बेटा ये तो राउंड डाउन होगा। तो नेक्स्ट इसको पॉइंट देखिएगा, एज अ डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 3 व्हिच इज लेस देन 5, सो द डिजिट विल बी राउंडेड डाउन। अब हमने देखना है डिजिट का प्लेस पे वो क्या है? 7। अब चूंकि हमें जो है वो इसको डाउन पे लेके जाना है, इट मींस कि हम 73 जो है ये 73 को पीछे लेके जाएंगे और नियरेस्ट नंबर ढूंढेंगे। जब भी हम लोगों ने राउंडेड डाउन करना है तो आपने जो डिजिट एट 10th प्लेस है बेटा यू डोंट हैव टू चेंज इट, वो एज इट इज रहेगा। द डिजिट एट 10th प्लेस व्हिच इज 7 दैट विल बी रिमेन सेम। मैं भी फॉर एग्जांपल की थी ना जिसमें ये डिजिट जो 3 है ये 5 था या 6 था, तो हमने राउंडेड अप किया था, तो जो डिजिट 10th प्लेस है उसमें हमने 1 ऐड किया था। बट हियर वी विल नॉट इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे? राउंडेड डाउन करेंगे। तो राउंडेड डाउन में बेटा आपने जो डिजिट 10th प्लेस है उसको एज इट इज रिमेन आपको वैसे ही छोड़ देना, रिमेन सेम। द डिजिट 10th प्लेस व्हिच इज 7 विल रिमेन सेम, और अगेन आपने क्या प्लेस करना है? 0 बेटा एट द डिजिट एट 1st प्लेस, क्योंकि 1st प्लेस जो डिजिट था वो हमने राउंड ऑफ कर दिया है, और डेसिमल के बाद तमाम पॉइंट्स आपने इग्नोर कर देने हैं और ड्रॉप कर देने हैं विद ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। सो वी आंसर, और आंसर विल बी 27। अगेन देखिएगा 4 डेसिमल पॉइंट आपने डिजिट को देखना है। द डिजिट एट यूनिट प्लेस, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 3 which is less than 5, and when it's less than 5 what happened? The digit will be rounded down, and we have to round down. What will we do? The digit at 10th place which is 7, we leave it remain same, and also place 0 on the digit at 1st place. So and after all the decimal points, even decimal point, the digits after that, we will omit all these digits. So our answer will become 270, 270. बेटा ये आपको समझ आया? बेटा ये 270 ये एग्जांपल समझ आ गई आप लोगों को? यस सर यस ओके बेटा। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एस्टिमेटिंग नंबर टू द नेक्स्ट 100। अब 100 के लिए जिस तरह अभी आपने देखा कि अगर हमने 10th प्लेस में जाना है, नियरेस्ट पे जाना है, तो हमने यूनिट प्लेस के नंबर को देखा। ये हमने दोनों एग्जांपल्स किए हैं जहां हम लोगों ने नियरेस्ट 10 पे गए हैं, तो बेटा हमने डिजिट देखा है यूनिट प्लेस पे। अब हम लोगों ने नियरेस्ट 100 को करना है, तो आपने नियरेस्ट 100 को करना है तो आपने डिजिट देखना है। वी लुक एट द डिजिट एट 10th प्लेस before decimal point. Rule is the same. If the number ending with 0, 1, 2, 3 or 4, we will get rounded down. And if that digit is ends with 5, 6, 7, 8 or 9, we will round it up.
रूल वही है बेटा, लेकिन अब जब हम नियरेस्ट पे जाएंगे तो हम देखेंगे डिजिट एट 10th प्लेस को। इसको देखेंगे बेटा, डिजिट एट 10th प्लेस को। अगर वो 0, 1, 2, 3 और 4 है, so then we will get rounded down. और अगर ये डिजिट 5, 6, 7, 8 और 9 है बेटा, फिर हम लोग इसको करेंगे राउंडेड अप। तो नाउ डिस्कस एन एग्जांपल। अब यहाँ देखिएगा मेरे पास सामने जो डिजिट आ रहा है वो 3589 है, and the question is we have to round it, we have to make it to the nearest 100. अब जब भी nearest 100 पे जाना है तो आपको मैंने बताया जो फर्स्ट रूल था that we have to look at the digit which is on 10th place, and on 10th place the digit is 8. So look at this, the first point, as the digit at 10th place is 8 and also which is greater than or equal to 5. So the digit will be rounded up. हम लोगों ने इसको आगे लेके जाना है, आगे लेके जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, अब जो 10th प्लेस पे डिजिट था उससे पिछले डिजिट पे चले जाएंगे, फर्दर लेफ्ट पे। फर्दर लेफ्ट जाएंगे बेटा तो क्या करेंगे, we will get the digit at 100th place. शाबाश। So we will add 1 in the digit at 100th place, which is 5. That is 5 becomes 6. And then what will we do? We will place 0 on all the digits after that. After that, we place digits because we have to round it at the nearest 100. So the digit after rounding, where 5 becomes 6, we will place 0 on the digit at 10th place and 1st place. 10th place पर digit की जगह पे 0 लगाएंगे, और 1 place, 1 digit, 1 के place पर भी हम लोग digit है उस पर भी 0 लगाएंगे. So the answer will become 3600, 3600. अगेन देखिएगा बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने नियरेस्ट 100 पे जाना है तो क्या करेंगे बेटे हम लोग, we will find the digit at 10th place. 10th place पे digit 8 है, which is greater or equal to 5. So what will we do? We will round it up the digit, and to make the rounded up the digit, we add 1 in the digit at 100th place. अब 100 place पे digit कौन सा है? 5 है. So we will add 1 in this 5, it becomes 6. So the answer will become 3 and 6, and we place 0 on the, at the place of 8 and 9. That means we place 0 on the digit at this place and 1 place. So the answer will be 3600. बेटा, is there any question? समझ आ गया आपको किस तरह से हमने इसको नियरेस्ट 100 किया है? Yes. बेटा क्लियर है, मैं आगे चलूं? Yes. Yes. अच्छा, एक और एग्जांपल देखिएगा बेटा, आपने माइक जरा ऑफ करें, शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, और जब आपसे बोले क्यों तभी आप बोले, अपने माइक ऑफ करें प्लीज। बेटा अपने माइक ऑफ करें, और जब आपसे क्वेश्चन करूं तो फिर ही आप आंसर करें। ओके बेटा, थैंक यू। अच्छा बेटा, now we have example number 4, and again another example to estimate the number to the nearest 100. Here we have an example 3743.1. That means 3743.1. Still mics on, please mic off करें. 3743.1, and we have to place it the nearest 100. मैंने आपको बेटा कोशिश समझाई थी पिछले एग्जांपल में, यही थी कि अगर हमने नियरेस्ट 100 पे जाना है तो then we concentrate on the digit at 10th place, and in this question, this example, the digit at 10th place is 4. The digit at 10th place is 4. Unit place पे 3 है, 10th place पे 4 है, 100th place पे 7 है, and 1000th place पे 3 है. When we are finding a nearest 100, first what we do, number 1,
we will find a digit at 10th place. So in this example, the digit at 10th place is 4. Now 4 is less than 5. So then what we will do? Definitely this digit will be rounded down. Okay, जो 4 है वो 5 से छोटा है. अगर छोटा होगा बेटा इससे स्मॉल होगा तो राउंड डाउन करेंगे. अगर 5 और उससे बड़ा होगा बेटा तो हम लोग राउंड अप करेंगे. Because it is less than 5, so then this digit will be rounded. So rounded down के लिए बेटा क्या करते हैं? We move to the digit at 100 place. So we move to the digit at 100 place, and the digit on the 100 place is 7. And as I told you that this digit will be rounded down, and whenever we round it down, we will leave the digit at 100 place as it is. That remains same. So beta ये 7 है digit at 100 place, हम इसको remain same छोड़ देंगे, इसमें कोई change नहीं करेंगे, and place zeros on the digits at 10th place and 1st place. And and omit all the decimal, the digit, not even decimal, but after decimal, we omit all these digits. So, and we get the answer 3700. Again, I am repeating, you have to find the nearest 100. We have to round the 3743.1 to the nearest 100. So what we'll do, the first step is we have to find the digit at 10th place. Here the digit at 10th place is less than 5. अगर बेटा ये 5 से बड़ा होगा तो हम राउंड अप करेंगे. अगर ये डिजिट 5 से छोटा होगा बेटा तो क्या होगा? The digit will be rounded down. So as it is less than 5, the digit will be rounded down. अब हमें क्या करना है? इससे पिछले डिजिट पे चले जाना है. The digit 100 place, which is 7. So हमारा जो आगे प्रोसेस क्या होगा बेटा? We will leave it remain same. We will not change it. We will not add one edit because we have to round it down. So this the digit at 100 place, which is 7, is remain same. And after that we place 0 on digit at 10th place and 1st place. 10th place पे 4 है वो भी 0 बन जाएगा. 1 place पे 3 है ये भी 0 बन जाएगा. और क्या करेंगे बेटा? डेसिमल और उसके बाद के जो डिजिट है सारे हम लोग उसको ओमिट कर देंगे, नहीं लिखेंगे. सो आवर आंसर बिकम 3700. यानी हमारा आंसर होगा 3700. बेटा कब समझ आ गई आप लोगों को ये? Yes. सो Sir. ओके बेटा. अब जरा अपने माइक ऑफ करें बेटा प्लीज. दोबारा से आप आंसर के अपने माइक फौरन ऑफ कर दिया करें बेटा. अच्छा बेटा, ये कुछ वीडियोस हैं जो मैंने आप लोगों को फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने प्रेजेंटेशन में प्लेस की हैं. ये प्रेजेंटेशन अभी आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड होगी आफ्टर 11:30. तो आपने इन वीडियोस को खुद चलाना है. चलाना आपने कैसे बेटा? जब आप लोगों का जो मोबाइल या कंप्यूटर जिस भी आप लोग नेट से कनेक्टेड है, आप लोगों ने बस इस आइकन पे क्लिक करना है एंड विल बी स्टार्टेड. यहाँ से आप अपनी स्क्रीन को बेटा लार्ज कर लेंगे. अब यहाँ जो वीडियो जो है इसमें आपको ऑडियो नहीं आएगी, और तभी आएगी जब आप इसको अपने घर के कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में इसको आप रन करेंगे. तो ये वीडियोस में आप लोगों के लिए आपको देखनी है. तो उम्मीद है कि आपको इससे और ज़्यादा जो है वो लेक्चर मेरा जो मैं समझा रहा हूँ समझ आ जाएगा. तो दोनों आप वीडियोस देखेंगे. और उसके बाद बेटा आप लोगों ने ये एक मैंने सैम्पल पेज दिया है. अपने अपना जो भी इसके बाद होम असाइनमेंट होगी बेटा, उस होम असाइनमेंट को आपने अपनी स्कूल कॉपी पे सॉल्व करना है. और फर्स्ट पेज है आपके कॉपी का, उसको बेटा आप लोगों ने उसका इंडेक्स पेज बनाना है. उस पर आप डेट लिखोगे, सीरियल नंबर होगी, डेट होगी, टॉपिक होगा, और जो भी आपकी कॉपी का पेज नंबर है वो आपने लिखना है. कॉपी पेज नंबरिंग आप करें और उसके बाद आप इस तरह से इस फॉर्मेट में फर्स्ट पेज आपने बनाना है.
और सेकंड पेज से आप लोगों ने फिर अपना, बल्कि थर्ड पेज से लिखिएगा। सेकंड पेज पे हम लोग अपना जो डिटेल है हमारा जो फर्स्ट सिलेबस है हम वो प्लेस करेंगे और थर्ड पेज आप अपना ये काम शुरू करना है। और जो होमवर्क आप स्टार्ट करेंगे बेटा, ये होम असाइनमेंट ये वाली है। आपने सिर्फ ऊपर हेडिंग देनी है अपनी कॉपी के ऊपर, राउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10। और बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं पहले आपने ऊपर दिए गए हैं 1 से लेकर 12 तक आपने ये सॉल्व करते हैं और उसके बाद आपने 13 और 14 वर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाना है। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप कोशिश करें कि इसकी सिर्फ एक जो पिक्चर है लेके मुझे आप सेंड कर दें अपनी कॉपी की। और इस तरह से इसकी सेकंड असाइनमेंट है, ये अपने कॉपी पे सॉल्व करनी है। तो पहले वाली असाइनमेंट है नियरेस्ट 10 के लिए है और जो सेकंड असाइनमेंट है वो नियरेस्ट 100 के लिए है। अच्छा, हमारे पास चूंकि टाइम की कमी है आपको अभी जी बेटा बोलिए। सर आई एम लारिब इमरान। सर ये जो आपने भी हमें होमवर्क दिया है सर, ये है उसके वो हमारी बुक के अंदर है? बेटा जो प्रेजेंटेशन आपको मैं अभी अपलोड हो जाएगी ना, मैंने अभी 11 o'clock फ्री होना है तो उसके बाद मैं इसको अपलोड करूंगा। तो जैसे ही अपलोड होगा तो सब कुछ लिखा होगा, ये सब कुछ लिखा होगा, आपको अब एडिट करने की जरूरत नहीं है। और ये जो लेक्चर अभी हम लोग मैं आपको दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये लेक्चर भी एज इट इज अपलोड होगा, लेकिन ये थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इस पे अपलोडिंग पे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आपकी जो प्रेजेंटेशन है ये वाली बेटा ये अपलोड हो गई आज इंशाल्लाह आफ्टर 11 o'clock और 11 तक होगी। थैंक यू सर। अच्छा बेटा अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास जस्ट 5 to 10 मिनट्स हैं तो मैं ये टॉपिक अभी स्टार्ट करूँ। ये है बेटा अप्रॉक्सीमेट नंबर अप टू नियरेस्ट 1000 एंड नियरेस्ट 10,000। अगेन मैंने वही टेबल आपको दिया था कि इस टेबल को आपको बेटा बहुत अच्छी तरह से याद, बहुत अच्छी तरह से अगर आप अप्रॉक्सीमेशन को समझना चाहते हो तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियंस, ये आप बहुत अच्छी तरह से करना। अच्छा अभी देखो हम लोगों ने डिस्कस सेट to make the number nearest 100 with nearest 10. So now we are going to study about estimating a number to the nearest 1000. आप लोगों ने देखा बेटा कि when अगर हम लोग जब उसको नियरेस्ट 10 हम लोग लेके गए तो हमने डिजिट एट 1 प्लेस को गए। जब हमने नियरेस्ट 100 को गए तो हमने जो है वो 10th प्लेस को देखा, 10th प्लेस पे यूनिट को देखा। जब हमने इसको 10th प्लेस पे डेवलप करने की कोशिश की तो हम लोगों ने डिजिट एट यूनिट पे फोकस किया। जब अपने 100 प्लेस पे गए तो हम लोगों ने 10th प्लेस को फोकस किया। अब हम लोग क्योंकि 100 प्लेस को की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग इसको 100 प्लेस पर फोकस करेंगे। अब देखिएगा यहाँ भी रूल वही है बेटा कि अगर जो डिजिट आपका 100 प्लेस पे है, जो 100 प्लेस पे डिजिट है, अगर 0, 1, 2, 3, 4 है तो राउंड डाउन करके, और अगर वो 5 से लेकर 5 से ऑनवर्ड 5, 6, 7, 8, 9 है तो हम इसको राउंडेड अप करेंगे। बेटा माइक प्लीज ऑफ करो ना, आपके शोर होता है तो शोर होता है। अच्छा ओके बेटा, लुक एट दिस एग्जांपल 340975 and the question is we have to estimate it or round it to the nearest 1000. अभी जब मैं आपको रूल बताया बेटा, अगर हमने 1000 के करीब जाना है तो हम लोग देखेंगे द डिजिट एट 100 प्लेस। अब यहाँ डिजिट एट 100 प्लेस कौन सा था? अगर मैं देखूँ 5 यूनिट 5 1 प्लेस पे है, 7 10th प्लेस पे है और 9 100 प्लेस पे है। अभी जो 9 जो 100 प्लेस पे कि हमने फोकस करना है इसको, ये दैट इज देन और इक्वल टू 5। सो ये चूंकि 5 से बड़ा है बेटा तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल दिस नंबर विल बी राउंडेड अप। बेटा माइक ऑफ करें प्लीज, ये अभी गाड़ी हॉर्न की आवाज आ रही है बीच में, कोशिश किया करें जब सिर्फ बोल रहा हो बेटा तो आपके माइक ऑफ करो, और जब आपसे कहा जाता है जब आप बोले तो ही आप जो है वो अपना माइक ऑन करें। ओके, the digit at 100 place which is 9 and also greater or equal to 5, so this number will be get rounded up. अब चूंकि हमने आप पे बनाया तो हमने डिजिट एट 100 प्लेस से फर्दर पीछे चले जाना है एंड क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज 1 इन द डिजिट एट 1000 प्लेस, और 1000 प्लेस पे इस वक्त एग्जांपल में 0 है।
तो क्या करेंगे, इसको हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो बेटा ये 0 क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। सो ये आंसर बनेगा 3 4 1। अब क्या करेंगे, जब हमने 0 की जगह 1 डाल दिया बेटा, सो जो उससे नेक्स्ट डिजिट है, डिजिट 1000 प्लेस, बेटा इन तीनों डिजिट की जगह हम लोग 0 प्लेस करेंगे। Place a 0 digit at 100, 10 in ones place. The answer will be 341,000. 341,000. सेम रूल है बेटा, जो 10 के लिए है वही रूल 100 के लिए है, वही रूल 10,000 के लिए है, बस उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती जाएंगी। अभी चूंकि वक्त मेरे पास बहुत कम मिनट रह गए हैं, मैं फर्दर आगे नहीं जाना चाहता। अभी आप ये जो दोनों वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड की, अभी आपको जो मैंने दी है उसमें जो मैंने आपके इसमें ऐड करो, इंशाल्लाह जो फर्स्ट असाइनमेंट आपकी है और सेकंड असाइनमेंट है, मैंने अभी इंशाल्लाह आफ्टर 11 o'clock की प्रेजेंटेशन अपलोड हो जाएगी अभी गूगल क्लास में। तो आपने जस्ट एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करनी, वैसे अगर एग्जाम्पल कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। बल्कि आप एग्जाम्पल जो है वो मैंने प्रेजेंटेशन में लगाई है, अब वो भी अपनी कॉपी पे सॉल्व करें, उनकी एग्जाम्पल्स हेडिंग बनाकर आज की डेट डालेंगे आप लोग, और उसके बाद एंड में जो मैंने होम असाइनमेंट्स आपको दिए हैं, आप होम असाइनमेंट नंबर 1, होम असाइनमेंट नंबर 2 की हेडिंग लगाएंगे। एंड उस जो रूल्स है मैंने आपको बताया कि यू हैव टू मेंटेन योर इंडेक्स पेज। उसके बाद एक पेज आप छोड़ के थर्ड पेज से आप उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन है तो अपने माइक ओपन करें और मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना बेटा तो आप कर सकते हैं। सबको समझ आ गया बेटा आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है? यस यस बस हमने आज पढ़ा बेटा rounding a number to the nearest rounded the number to the nearest 100 and rounded number to the nearest 1000। आपको जो प्रेजेंटेशन बेटा अपलोड होंगी वो 3 होंगी। मैंने आपको भी एक भी तो प्रॉपर्ली तो आज हमने एक ही प्रेजेंटेशन को स्टडी किया, लेकिन आप जो बाकी जो प्रेजेंटेशन है वो जरूर उसको स्टडी कीजिएगा। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन पूरे टॉपिक को तीनों आपको मैं स्लाइड से पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन अपलोड करूंगा। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीक में इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे। और इसमें भी इसी तरह के रूल्स बहुत क्लियरली आपको मैंने बना के दिए हैं। आप थोड़ी सी आज लेक्चर को अगर आप अच्छी तरह से समझ नहीं होंगी तो आपके लिए नेक्स्ट चीज़ों को समझना भी आपके लिए मुश्किल है। सो ट्राई टू फिनिश योर वर्क टुडे। आपके पास कॉपीज मौजूद हैं और समझ आ गई है बेटा तो आप इसको सॉल्व करें और कोशिश करें कि विद इन अ डे, आज के दिन या नेक्स्ट डे, आप इसकी एक पिक्चर जो है मुझे ग्रुप में मोबाइल से मोबाइल से पिक्चर लें, अपना नाम ऊपर लिखें और मुझे वो सेंड कर दें ताकि मैं चेक कर लूँ कि आप किसी को टॉपिक समझ आ गया। फर्दर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। बेटा इज देयर एनी क्वेश्चन? हम लोगों को दिखाया था जिस तरह से हम लोगों ने नीट कॉपी पर काम करना है, सर मुझे वो समझ नहीं आई थी, वो जो सीरियल नंबर वाला आपने बताया। बेटा आपने अभी आपको एक वक्त एक बच्चा बोले तो बेटा आप लोगों ने जो मैंने प्रेजेंटेशन है आपको 11 बजे 11:30 तक अपलोड हो जाता है ना, जो उसमें पूरी डिटेल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है और इंस्ट्रक्शंस को बस आपने फॉलो करना और नीचे सामने पेज दिया होगा वो आपने कॉपी के फर्स्ट पेज बनाना है। वो आप इंडेक्स रीड करेंगे ना इंस्ट्रक्शन आपको समझ आ जाएगी सारी। ठीक है बेटा? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।